کامیاب جوان پروگرام کے 2 سال مکمل، 23 ارب روپے مالیت کے 16,617 رعایتی کاروباری قرضے، 1,01,447 اسکالرشپس دیے گئے۔ نوجوان کسی بھی معاشرے میں تبدیلی کا اثر محرک ہوتے ہیں، نوجوانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں بھرپور شمولیت یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ اہم قانون سازی میں وکلاء اور بار ایسوسی ایشنز کے کردار کا خیر مقدم کریں گے۔ نیب آرڈیننس کو چیلنج کرنے کی بجائے اصلاحات کی تجاویز دی جائیں۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو۔ گزشتہ حکومتوں نے بھاری قرضے لیے، وزیر اعظم عمران خان نے ملک کو مشکل صورتحال سے نکالا۔ شریفوں اور زرداریوں کی شوگر ملوں نے چینی مہنگی کی۔ حکومت غربت کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ مالاکنڈ ڈویژن میں 20 سال سے زیر التوا ریلوے ٹریک منصوبہ مکمل کر رہے ہیں۔ وفاقی وزراء مراد سعید، عمر ایوب، اعظم سواتی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا مانسہرہ میں جلسے سے خطاب۔ بیڈ گورننس، کرپشن اور انتقامی سیاست کا سیاہ باب ختم ہو چکا۔ اپوزیشن کے پاس شور مچانے کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں۔ اندرون سندھ تحریک انصاف کے جلسے میں عوام کی بھرپور شرکت نے ثابت کر دیا کہ سندھی عوام زرداری پارٹی سے تھک چکے ہیں۔ 2023 میں سندھ میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ملتان میں خطاب۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یوم شہداء جموں اس عزم کے ساتھ منایا کہ وہ حق خود ارادیت کے حصول تک شہداء کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ شہداء جموں کی یاد میں مظفر آباد میں ریلی، حریت رہنماؤں کا شہداء کی عظیم قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت۔ افغان حکومت کا فوجی پس منظر اور تربیت نہ رکھنے والے افراد کو فورسز سے الگ کرنے کا اعلان۔ پیشاور اور پرعزم افراد کو فوج میں بھرتی کریں گے۔ صوبہ ننگرہار میں داعش کے 55 جنگجوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تقریبی سرگرمیاں ترک کر کے قومی دھارے میں شامل ہونے کا عہد۔ عوام کا استحصال نہیں ہونے دیں گے، ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چینی مقررہ قیمت پر فراہم کرنے کی ہدایت۔ کرشنگ سیزن کے جلد آغاز کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ سردار عثمان بزدار۔ ملک میں کرونا کیسز میں واضح کمی، ڈینگی کا زور برقرار۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب میں 561، کراچی میں 28، اسلام آباد میں 86 اور خیبر پختونخوا سے 183 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کرونا کی شرح 1.2 پر آ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 567 نئے کیسز رپورٹ، 11 افراد جاں بحق، مجموعی تعداد 28,518 ہو گئی۔ T20 کرکٹ ورلڈ کپ کا سپر 12 مرحلہ ابوظہبی میں آسٹریلیا کی ویسٹ انڈیز کے خلاف 8 وکٹ سے کامیابی۔ ڈیوڈ وارنر کے جارحانہ 89 رنز، مچل مارشل کے 53 رنز، جوش ہیزل ووڈ کی 4 وکٹس۔ Smashed it straight to mid-off. Gale has a wicket. What a way to sign off. The universe boss comes to hug the man who... Run rate. And get it done, he has. گروپ 1 کے اہم میچ میں جنوبی افریقہ کا انگلینڈ کو 190 رنز کا ہدف۔ میگا ایونٹ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ Goes again, leg side, short boundary. Over pitched. This is a fantastic over for South Africa. میگا ایونٹ میں پاکستان اپنا 5واں میچ کل اسکاٹ لینڈ کے خلاف شارجہ میں کھیلے گا۔ میچ شام 7 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ قومی اسکواڈ کی آئی سی سی اکیڈمی میں تیاری، گروپ 2 کلین سویپ کرنے کے لیے پر امید۔ T20 ورلڈ کپ، دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلوں پر پی ٹی وی سپورٹس کی لائیو ٹرانسمیشن۔ کرکٹ لیجنڈ سر ویون رچرڈز اور ڈیوڈ گاور کے دلچسپ اور مؤثر تبصرے۔ راشد لطیف، عاقب جاوید اور عمر گل کی ماہرانہ آرا۔ گروپ 1 میں سیمی فائنل کے لیے آسٹریلیا اور انگلینڈ فیورٹ قرار۔
कराची में 15वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप। मिस्र के मुस्तफा जर्फी ने हांगकांग के फिंगे को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने फातेह और रनर अप में इनामात तकसीम किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। शेर सुर्खियां आपने जानी, इन खबरों की तफसील जानिएगा इस ब्रेक के बाद। मोबाइल पर 25,000 का डिस्काउंट, फ्रिज पे 15,000 की बचत, फैशन ब्रांड्स पर फ्लैश सेल। जल्दी से ऐड टू कार्ट करें और 11 नवंबर से एंजॉय करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। खबरनामे के आगाज में आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारी आबादी का 68% हिस्सा 30 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। नौजवानों की इस कसीर तादाद को अजीम सरमाए में तब्दील करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मुआवन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान किसी भी मुआशरे में तब्दीली का असल मुहर्रिक होते हैं। हम उनकी तवानाइयों को अपने मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए मुस्बत समत में इस्तेमाल करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। मियारी तालीम और हुनर के जरिए नौजवानों की इस्तेदाद कार में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने जिंदगी के तमाम शोबों में नौजवानों की मौसर शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत की ताकि उन्हें आला मकासद के हुसूल में मदद मिल सके। मुआवन खुसूसी उस्मान डार ने कामयाब जवान प्रोग्राम की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की। वज़ीर आज़म को बताया गया कि यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के तहत 2 साल कबल स्कीम के आगाज़ से अब तक 23 अरब रुपए मालियत के 16,617 रियायती कारोबारी कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। कामयाब जवान स्किल फॉर ऑल प्रोग्राम के तहत नौजवानों को अब तक 1,01,447 स्किल स्कॉलरशिप्स दी जा चुकी हैं, जिस पर 4 अरब 70 करोड़ रुपए लागत आई है। वज़ीर आज़म को ये भी बताया गया कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों की सहूलत के लिए मजीद 5 इक़दामात भी जल्द शुरू किए जा रहे हैं। इन इक़दामात में 106 यूनिवर्सिटीज़ में कामयाब जवान मराकज़ का क़याम, ग्रीन यूथ मूवमेंट, कामयाब जवान इनोवेशन लीग, कामयाब जवान टैलेंट हंट स्पोर्ट्स लीग और कामयाब जवान स्पोर्ट्स अकेडमीज़ और स्पोर्ट्स गाला शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म को कश्मीर कॉज को बैन अल-अक़वामी सतह पर उजागर करने के हवाले से अमरीका और यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों को मुतहर्रिक करने के हवाले से अपने गैर मुल्की दौरों की कामयाबी से आगाह किया। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने निजी बैंक की तरफ से फ्रॉड से मुतासरा शहरी को 8 लाख रुपए की गुमशुदा रकम वापस करने का विफाकी बैंकिंग मोहतसिब का हुक्म बरकरार रखा है और इस हवाले से विफाकी बैंकिंग मोहतसिब के फैसले के खिलाफ सुनहरी बैंक की अपील मुस्तरद कर दी है। सदर ममलकत ने अपने फैसले में लिखा है कि बैंक की जानिब से बद इंतजामी और बेजाब्तगी साबित होती है। बैंक इंतजामिया की जानिब से शहरी को फ्रॉड का निशाना बनाया गया। कानून के तहत बद इंतजामी पर बैंक शहरी को रकम वापस करने का पाबंद है। तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा के मुतासरा शहरी ने सुनहरी बैंक में 20 लाख की रकम जमा कराई थी और उसके पास इस हवाले से रसीदें भी मौजूद थीं। बैंक मैनेजर ने 20 लाख की एक रसीद देने के बजाय 5, 6 और 9 लाख की 3 अलग अलग रसीदें देने पर इसरार किया। रकम वापस निकलवाते वक्त मुतासरा शहरी के अकाउंट में पूरी रकम मौजूद नहीं थी। रसीदें होने के बावजूद बैंक की जानिब से शहरी को रकम वापस नहीं की जा रही थी। रकम वापस न मिलने पर शहरी ने वफाकी बैंकिंग मोहतसब से रुजू किया, जिस पर वफाकी बैंकिंग मोहतसब ने फ्रॉड साबित होने पर सुनहरी बैंक को रकम वापस करने का हुक्म दिया। गुज़श्ता हुकूमतों ने मुल्क को मकरूज बनाया। इमरान खान ने मुल्क को मुश्किल सूरत हाल में संभाला। मौजूदा हुकूमत गुर्बत के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीबों के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान किया है। इन ख्यालात का इज़हार वज़ीर आला महमूद खान और वफाकी वज़रा मुराद सईद, आज़म खान सवाती और उमर अयूब ने मानसेरा में जलसे से खिताब करते हुए किया।
जिस की तफसील आपको बताएंगे राहील अंसार अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान की क़यादत में वफाकी और सूबाई हुकूमत अवाम की तरक्की के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि सूबे भर में सेहत और किसान कार्ड के बाद अब एजुकेशन और फूड कार्ड भी मुतारिफ कराया जा रहा है। वज़ीर आला ने वफा को सब डिवीजन का दर्जा देने समेत मानसेरा में 2 डिग्री कॉलेज तामीर करने का भी ऐलान किया। प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन के मुताबिक जो भी बंदा खैबर पख्तूनख्वा का शहरी है और उसके जेब में शनाख्ती कार्ड मौजूद है, वो 10 लाख रुपए उसके इलाज पर पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल से वो अपना इलाज मुफ्त करवा सकता है। जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में छोटे काश्तकार है, सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स और जितनी भी यूरिया है, ये हम इनको बिल्कुल कम कीमत पर देंगे। मेरिट पे जो भी बच्चा आएगा और पाकिस्तान के किसी भी तालीम दरसगाह में वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एजुकेशन कार्ड के जरिए उनको बिल्कुल मुफ्त तालीम फराहम करेगी इंशाअल्लाह। वज़ीर मुवासलात मुराद सईद ने कहा कि हुकूमत ने मानसेरा और उसके गिरदोनवा के इलाकों में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया है। तालीम, सेहत और शाहराहों समेत दीगर जारी मंसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल होंगे। जब सयाहत को फरोख्त दी, जब सड़कों की तामीर की, वहाँ पे टूरिज्म को फरोख्त दिया, तो सिर्फ ईद की छुट्टियों में आपके और हमारे इलाकों में 27 लाख लोगों ने 66 अरब रुपया यहाँ पे लगाया और हमारे लोगों को रोजगार मिला, उनकी माशी सरगर्मियां शुरू हो गई। दहशतगर्दी से तबाहशुदा सूबे को अमन की राह पे गामजन करके तरक्की की तरफ ले गए। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर उमर अयूब ने कहा कि जरदारी और शरीफ फैमिली के लिए हुए कर्ज हम उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद इमरान खान की क़यादत में हमने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। 1947 से लेके 2007 तक मुल्क पे 7,000 अरब रुपए का कर्जा, उन्होंने कर्जा उठा के 30,000 अरब रुपए पे छोड़ दिया और हमें मकरूज मुल्क बना के चले गए जनाबे वाला। और वो करप्शन की रकम किधर गई? वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति ने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम की फलाह के लिए अमली इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हज़ारा यूनिवर्सिटी की अपग्रेडेशन समेत तोरगर के लोगों के लिए तरक्याती मंसूबे जल्द शुरू करेंगे। हज़ारा यूनिवर्सिटी को हम और अपग्रेड करने के लिए जा रहे हैं। सिरन को डेवलपमेंट अथॉरिटी की सूरत में हम आपका ये तोहफा देंगे तो वहां पे टूरिज्म जो है तरक्की करेगा। मालाकंड को मैं नौशेरा से लेकर दरगई तक सिर्फ 3 महीने के अंदर पाकिस्तान रेलवे का वो ट्रैक जो 20 साल से नाकारा था, अगर आपके मालाकंड कि उस डिवीजन के अंदर मैं लेके आऊंगा। इससे पहले रुकने कौमी असम्बली साले मोहम्मद खान ने पासनामा पढ़कर सुनाया और इलाके के मसाइल से वज़ीर आला को आगाह किया। मुल्क भर के पसमानदा इलाकों में तरक्याती कामों का जाल बिछाकर अवाम की महरूमियों का खात्मा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मानसेरा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बैड गवर्नेंस, करप्शन और इंतकामी सियासत का स्याबाब ख़त्म और मुल्क की तरक्की और बकार का सफ़र शुरू हो चुका है, जो अपोजिशन के जलसों और एहतजाज से नहीं रुक सकता। मुल्तान में अपने हल्का इंतखाब में तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास शोर मचाने के अलावा कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज का असल मकसद अवाम को इर्जा निर्खों पर अशियाए खुरोनोश फराहम करना है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत खुलूस नीयत, ईमानदारी और दयानतदारी से मुल्क की खिदमत के जज्बे को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की ख्वाहिश है कि महंगाई को इशू बनाकर अवाम को सड़कों पर लाया जाए, लेकिन अवाम अपोजिशन की चालों को खूब समझते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 2023 में सिंध में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात, नैब ऑर्डिनेंस समेत दीगर अहम कानून साजी में वकला और बार एसोसिएशन के किरदार का खैर मकदम करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने के बजाय हुकूमत को इस्लाहात तजवीज़ करें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून की क़यादत में नौमुंतखब ओहदेदारान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि कौमी मामलात और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वकला बरादरी रहनुमाई करे। बार एसोसिएशन सियासी जमातों को बड़ी इस्लाहात पर करीब लाने में किरदार अदा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के दरमियान वकला पुल का किरदार अदा करते हैं। इस किरदार को कौमी मामलात में भी अपनाया जाए।
चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि मुआशरे में कानून की बारादस्ती के लिए वकला बरादरी को अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए। बार एसोसिएशंस को अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात जल्द निपटाने के लिए अपनी काफियाँ बुरेकार लाना होंगी। वज़ीर इत्तलात ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारान को हालिया इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इत्तलात और नशियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 3 खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहाँ वबाई मरज़ से बेहतरीन अंदाज में निपटा गया, जिसकी तारीफ आलमी इदारे भी कर रहे हैं। फैसलाबाद में कोरोना वबा के दौरान रज़ाकाराना खिदमात सर अंजाम देने वाले नौजवानों में एजाज़ी सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए फ़ारूक हबीब ने कहा कि जहाँ दुनिया की मईशत सिमट रही थी, वहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान का एहसास प्रोग्राम दुनिया भर में चौथे नंबर पर रहा। उन्होंने कहा कि महंगाई ने आलमी सतह पर 50 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तहम हमारी हुकूमत अशिया खुरोनोश पर 120 अरब रुपए की सब्सिडी लाई है, जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सिंध में चलती शुगर मिलें बंद कर दी गईं, लेकिन मार्केट में वाफिर मिकदार में चीनी फराहम कर दी गई है और गन्ने के काश्तकारों को 99% अदायगियाँ हो चुकी हैं। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि नौजवानों के लिए कारोबार और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अलावा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप समेत कई फलाही मंसूबे भी शुरू किए गए हैं। दीगर खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11/11 पे। 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे आज की तारीख के हवाले से, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम शोहदा जम्मू इस तजदीद अहद के साथ मनाया कि वो हक़ खुद इरादगियत के हुसूल तक शोहदा के मिशन को जारी रखेंगे। नवंबर 1947 के पहले हफ्ते में डोगरा महाराजा हरि सिंह की फोर्सेस, भारतीय फौज और हिंदू इंतहा पसंदों ने जम्मू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में लाखों अफराद को उस वक्त शहीद किया था जब वो पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नजरबंद चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा कि जम्मू का कत्लेआम कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी फौजी कब्जे के बाद मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की पहली कार्रवाई और रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया कि वह हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने पर रियासती अवाम को निशाना बनाने पर भारत के खिलाफ कार्रवाई करें। मीरवाइज हुर्रियत फोरम ने एक बयान में कहा है कि जम्मू के मुसलमानों की नस्ल कुशी कश्मीर की जदोजहद आज़ादी की तारीख का इंतहाई दर्दनाक बाब है। हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने अपने बयानात में कहा कि जम्मू में मुसलमानों के कत्लेआम का मकसद मकबूजा इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करना था। शुहदाए जम्मू को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के ज़ेर तमाम इस्लामाबाद में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के मुकर्रीन ने कहा कि रियासती आवाम इस वक्त तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे जब तक उन्हें हक़ खुद इरादत नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि शुहदाए जम्मू की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। शुहदाए जम्मू के मौके पर इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए सदर आज़ाद हुकूमत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर आज़ादी का बेस कैंप है और यहाँ से मकबूजा इलाके के आवाम की आवाज़ आलमी सतह पर पहुँचाने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बुरोकार लाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू और मंग में तहरीक आज़ादी के शोहदा की यादगारें जल्द बना दी जाएंगी। मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीरी अवाम का कत्लेआम आज भी जारी है। हमें मुत्तहिद होकर मसला कश्मीर के हल के लिए मौसर कोशिशें करना होंगी। यौम शुहदाए जम्मू के मौके पर आज़ाद कश्मीर भर में जल्द से जुलूसों, एहतजाजी मुजाहरों, रैलियों और इज्तिमात का इनेकाद किया गया। तफसील के लिए देखिए अदील अहमद खान की रिपोर्ट।
یوم شہدائے جموں کے سلسلے میں مظفرآباد میں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ 6 نومبر 1947 کے شہداء نے آزادی کی فصل کی آبیاری اپنے لہو سے کی اور امر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. مسئلہ کشمیر نزدیک ہے اور پاکستان میں ایک مضبوط حکومت اور مضبوط اعصاب کا مالک وزیر اعظم ہے جس کو عمران خان کہتے ہیں. جب وہ بات کرتا ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ کرکٹ کے میدان میں بھی ورلڈ کپ لیا تھا تو اب مسئلہ کشمیر کا ورلڈ کپ یہی لے گا. اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک مرتبہ پھر عالمی برادری سے مطالبہ دہرایا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. شہدائے جموں کی یاد میں مظفرآباد کے برہان وانی چوک سے ریلی نکالی گئی جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ریلی کے شرکاء نے بینرز تھام رکھے تھے جن پر شہدائے جموں کی یاد میں نعرے درج تھے. شرکاء نے برہان وانی شہید چوک سے علمدار چوک تک مارچ کیا. ریلی کے اجتماع سے خطاب کے دوران مقررین نے شہدائے جموں سمیت آزادی کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے مقدس مشن کی تکمیل تک جدوجہد آزادی جاری و ساری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفرآباد، آزاد کشمیر. یوم شہدائے جموں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں تحریک جوانان کشمیر کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ ریاستی قوم نے پاکستان کی محبت میں قربانیوں کی داستان رقم کی ہے. سینئر وزیر سردار تنویر الیاس نے کہا کہ حکومت تحریک آزادی کشمیر کو جدید بنیادوں پر آگے لے کر جائے گی. مقررین نے کہا کہ کشمیر کے بیٹوں نے اپنے لہو کی قربانیاں دے کر ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. کچھ بات کریں گے افغانستان کی، جہاں افغان حکومت نے اعلان کیا کہ فوجی پس منظر اور تربیت نہ رکھنے والے افراد کو فورسز سے الگ کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ باقاعدہ جنگجو، پیشہ ور اور پرعزم افراد کو فوج میں تعینات کیا جائے گا. اس بات کا فیصلہ دارالحکومت کابل میں امارات اسلامی افغانستان کے ملٹری لبریشن کمیشن کے اجلاس میں کیا گیا. طالبان حکومت نے فوجی تربیت مکمل کرنے والے 100 مجاہدین کی ویڈیو جاری کی ہے. ہلمند میں اسلامی امارات کے کیمپ میں تربیت مکمل کرنے والے ان مجاہدین کو اب افغان آرمی کا باقاعدہ حصہ بنایا گیا ہے. ادھر صوبہ ننگرہار میں داعش کے 55 جنگجوؤں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. حکام کے مطابق قبائلی سرداروں کی مداخلت پر ہتھیار ڈالنے والے یہ جنگجو 3 مختلف اضلاع میں سرگرم تھے. اب انہوں نے تخریبی سرگرمیاں ترک کر کے قومی دھارے میں شامل ہونے کا عہد کیا ہے. لاہور میں وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں چینی کی قیمتوں میں استحکام کے لیے ضروری اقدامات کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مقرر کردہ نرخوں پر چینی کی فروخت یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن انتظامی قدم اٹھایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ مافیا کے ہاتھوں عوام کا استحصال نہیں ہونے دیا جائے گا. ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی. وزیر اعلیٰ نے کرشنگ سیزن کے جلد آغاز کے لیے صوبائی وزیر صنعت کو فوری اقدامات کی ہدایت کی. اجلاس میں بتایا گیا کہ لاہور میں 200 بڑے سٹورز اور 1600 دکانوں پر چینی 90 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم نے کہا کہ سندھ میں چینی کے نرخ بڑھنے کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے. شوگر ملز کو 15 اکتوبر کو چلانا ہوتا ہے لیکن صوبائی حکومت نے ابھی تک کوئی شوگر مل نہیں چلائی. انہوں نے بتایا کہ حکومت کے پاس 1 لاکھ ٹن جبکہ ملز کے پاس بھی 80,000 ٹن چینی کے ذخائر موجود ہیں. ہمارے پاس 22 دن کا سٹاک ہے جبکہ شوگر ملز کے پاس 10 دن کا سٹاک باقی ہے. ملک کی سطح پر کرونا وائرس کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے. ملک بھر میں کرونا کیسز میں خاطر خواہ کمی دکھائی دے رہی ہے. کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.2% پر پہنچ گئی ہے. تفصیل بتائیں گے آپ کو صدف افضل. مؤثر حکومتی اقدامات سے پاکستان میں کرونا کیسز کی شرح 1.20% رہ گئی. ملک بھر میں کرونا سے ایک دن میں 11 افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 28,518 ہو گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,918 نئے ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے 567 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی. 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 445 مریض کرونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 12,24,870 ہو گئی ہے.
पंजाब में 12,943, सिंध में 7,582, खैबर पख्तूनख्वा में 5,765, इस्लामाबाद में 944, बलोचिस्तान में 357, गिलगित बल्तिस्तान में 186 और आज़ाद कश्मीर में 741 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी भरपूर तरीके से जारी है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 11 करोड़ से जायद वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। NCOC ने अवाम के लिए कोरोना की दूसरी खुराक को लाजिम करार दिया है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो जल्द अज जल्द करीबी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन की डोजेस लगवाएं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बात कर लेते हैं कुछ डेंगू के हवाले से। तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुबह पंजाब से डेंगू के 561 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 436 मरीज लाहौर से, जबकि रावलपिंडी से 40, गुजरांवाला से 13, शेखुपुरा से 10, फैसलाबाद से 7, कसूर से 6, भावल नगर से 5, अटक, ननकाना साहिब और नारोवाल से 4, भावलपुर, हाफिजाबाद से 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब से डेंगू केसेस की तादाद 12,860 हो चुकी है। रवां साल पंजाब भर में डेंगू से 63 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। गुज़श्ता रोज़ डेंगू बुखार से 4 अफराद की मौत वाक़ हो चुकी है। सूबा भर के हस्पतालों में डेंगू के 2285 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से लाहौर के हस्पतालों में 1562 मरीज दाखिल हैं। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के मरीजों के लिए 5436 बिस्तर मुख्तस हैं। डेंगू के मरीजों की आसानी के लिए लाहौर के टीचिंग अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद में इजाफा किया गया है। सर्द मौसम के आगाज से ही कराची में डेंगू के मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ कराची में डेंगू के 28 नए केसेस दर्ज हुए। यूँ इस माह के दौरान इस मरज़ के 166 केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। डेंगू के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से शहर के अस्पतालों में खुसूसी वार्ड्स बनाए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली असगर अरबाब। कराची में डेंगू बुखार से मुतासरा मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल और डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल समेत शहर के दीगर अस्पतालों में खुसूसी वार्ड्स बनाए गए हैं, जहां मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। डाउ यूनिवर्सिटी के जेर इंतजाम सिंध इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में डेंगू से मुतासरा मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। डाउ यूनिवर्सिटी का जो सिंध इन्फेक्शस डिजीज़ का हॉस्पिटल है, उसके अंदर हमने 30 बेड का एडल्ट्स का और 8 बेड का पीडियाट्रिक यूनिट बनाया है, जिसमें डेंगू के मरीज़ों का फ्री इलाज हो रहा है। तमाम टेस्ट जो हैं वो सरकारी तौर पर किए जाते हैं और जिन लोगों को प्लेटलेट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उनको उसके लिए अरेंज किया जाता है। डेंगू बुखार एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से होता है, जिससे एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके बचा जा सकता है। अपने घर और ऑफिस से आपने मच्छरों को साफ़ रखना है। अगर बाहर खुले में सो रहे हैं तो मॉस्कीटो नेट उसका इस्तेमाल करना है। पूरे आस्तीन के जो है कमीज़ें उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। घरों में टैंक होता है पानी वाला, घर के बर्तनों में अगर पानी पड़ा हुआ है तो उसको ढाँक कर रखना है। डेंगू बुखार की तशखीस के बाद बर वक्त इलाज से मुतासरा मरीज़ इस मर्ज़ की शिद्दत और ख़तरात से महफूज रह सकते हैं। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। शहर के कायद के बाद अब आपको बताएं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में डेंगू केसेस की तादाद 6,500 से तजावुज़ कर गई है। तफसील बता रहे हैं हसन तारिक भट्ट। जुर्मा शहरों में अगर सबसे पहले इस्लामाबाद की बात की जाए तो लास्ट 24 आवर्स में 51 केसेस जो हैं वो डेंगू के रजिस्टर हुए हैं। इस तरह टोटल केसेस जो इस्लामाबाद शहर के अंदर 4,657 हो चुके हैं। अगर इनके रेशो की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 60 to 40% का डिफरेंस है। 60% केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद रूरल एरिया से आ रहे हैं, जबकि 40% जो इस्लामाबाद मेन सिटी के हैं। रावलपिंडी शहर की बात की जाए तो लास्ट 24 आवर्स में जो हैं 37 केसेस डेंगू के रजिस्टर हुए हैं। इस तरह जो टैली है वो 1,980 यानी ऑलमोस्ट 2,000 के करीब जो हैं वो डेंगू केसेस रावलपिंडी रीजन में, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर हो चुके हैं। इस तरह टोटल अगर बात की जाए रावलपिंडी इस्लामाबाद की तो 6,637 केसेस जो हैं वो अब तक हो चुके हैं। तो दोनों शहरों की जो इंतज़ामिया है वो इस हवाले से उन्होंने इक़दाम को भी तेज़ कर दिया है और मुतादिद इलाकों में इनकी जो तश्कील करदा टीमें हैं वो जाकर विज़िट भी कर रही हैं। जो लार्वा ब्रीडिंग साइट्स हैं उनको जो है वो एलिमिनेट भी किया जा रहा है, लार्वे को तल्फ भी किया जा रहा है। और बिलखसूस मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो फ्यूमिगेशन एक्टिविटीज़ हैं, स्प्रे है, वो भी भरपूर अंदाज में जारी है। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि नाकाम और अवाम से मुस्तरद शुदा सियासी बेरोजगारों ने सियासी ऑक्सीजन हासिल करने के लिए एक और बैठक लगाई।
بارہا انہیں سمجھایا کہ سیاست میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اجلاسوں کی تاریخیں نہیں اپنے لچھن بدلیں۔ پی ڈی ایم سربراہ اجلاس پر رد عمل میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ انہیں سمجھایا کہ عوام کے دلوں تک کا راستہ سازشوں سے نہیں اپنے کرتوتوں سے توبہ کر کے ہموار کیا جا سکتا ہے، مگر سیاسی بے روزگاروں کی انجمن کا فیصلہ ہے کہ پاکستان میں کسی اچھے کام کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کی امامت میں ان کے احتجاج کا مستقبل پہلی تحریکوں سے ہرگز مختلف نہیں ہوگا۔ معیشت کی تباہی کی بنیاد رکھ کر یہ جس غریب عوام پر عرصہ حیات تنگ کر کے گئے، وزیر اعظم مسلسل ان کے دکھوں کا مداوع کرنے میں مصروف ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ 120 ارب کا ریلیف پیکج کے سامنے آتے ہی اس گروہ کو اپنا مستقبل مستقل تاریکیوں کی نظر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وزیر اعظم کے اعلان کردہ پیکج سے اشیاء ضروریہ رعایتی نرخوں پر عوام کو دستیاب ہوں گی۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ آج کی بیٹھک کا دوسرا بڑا فیصلہ ہے کہ انتخابات میں شفافیت کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ گروہ چاہتا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کے دروازے کھلے رہیں تاکہ ان کی بقا کے امکانات زندہ رہیں۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ انہیں انتخابی نظام کی تطہیر اور معیشت کی تعمیر میں رکاوٹ بننے دیں گے، نہ اس ایجنڈے سے پیچھے ہٹیں گے۔ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، کسی دھونس اور دھمکی سے مروب نہیں ہوں گے۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی پہلی ترجیح ملک کی سلامتی اور استحکام ہے۔ راولپنڈی کے علاقے جٹھا ہتھیال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ملک کو لوٹا۔ آج کی مہنگائی کے پیچھے بھی اپوزیشن کا کردار ہے۔ ملک و قوم کا پیسہ لوٹنے والوں کو حساب دینا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی 25 دسمبر کو وزیر اعظم پاکستان اس رنگ روڈ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس رنگ روڈ بننے سے اس علاقے میں مزید خوشحالی آئے گی۔ ملتان کی ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے ثمرات ملنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ حکومت کا تمام مشکلات کے باوجود ترقی کا سفر بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے ملتان میں انفراسٹرکچر کے منصوبوں کو ترجیح بنایا گیا ہے اور ٹریفک مسائل کے حل کے لیے ٹیکنیکل اداروں سے سروے کرایا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے ہدایت کی کہ قومی تعمیر نو کے محکمے تمام منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کریں۔ لاہور میں وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں ڈینگی کریش پروگرام سمیت لاہور میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے ڈینگی کے کنفرم مریضوں کے لیے مزید بستر مختص کرنے اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کو مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے واسا سیوریج سسٹم کو بہتر بنانے اور لیسکو کو لٹکتی ہوئی تاروں کو ہٹانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اس موقع پر شفقت محمود نے کہا کہ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی ممکن بنائی جائے، خصوصاً امن و امان کے حوالے سے صورتحال کو مزید بہتر بنایا جائے۔ پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تجارت کو $5 ارب تک لے جانے پر اتفاق کیا ہے۔ تہران میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور ایران کے وزیر صنعت و تجارت رضا فاطمی کے درمیان ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشیر تجارت نے کہا کہ دونوں ممالک میں سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو مزید وسیع بنانا ضروری ہے۔ ملاقات میں نویں مشترکہ تجارتی کمیٹی کے فیصلوں پر مثبت انداز میں عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ انسداد منشیات کے وزیر اعجاز شاہ نے کہا کہ مہنگائی عالمی مسئلہ ہے جس پر قابو پانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ننکانہ صاحب میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار عام آدمی کو ریلیف پیکج دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے اس پیکج سے 1 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آج کسانوں کی معاشی حالت بہتر ہے اور انہیں ان کی فصلوں کا بہتر معاوضہ مل رہا ہے، جو یقیناً حکومتی پالیسیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کو کوئی بھی سنجیدہ نہیں لیتا، عوام اب ان کے خالی نعروں پر یقین نہیں رکھتے۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ مقتول ناظم جوکھیو کیس کی پیش رفت کے حوالے سے وزیر اعظم مسلسل رابطے میں ہیں اور ناظم جوکھیو کے لواحقین کو یقین دلاتا ہوں کہ قتل میں ملوث عناصر کو ہر صورت میں قانون کے گرفت میں لایا جائے گا۔ وہ کراچی میں مقتول ناظم جوکھیو کے لواحقین سے تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ گورنر نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر جنگل کا قانون نہیں چلنے دیں گے۔ اس سے پہلے گورنر سندھ نے مقتول ناظم جوکھیو کے لواحقین سے تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔
अपना कहना है डिस्काउंट नहीं मिला। 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11-11। बड़ी सेल की बड़ी बचत। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना वबा के बावजूद हुकूमत के मौसर इकदामात की बदौलत मईशत तरक्की के रास्ते पर गामजन है। इस्लाहाती इकदामात के जरिए रवा माली साल के तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। मौजूदा हुकूमत ने रवा माली साल मुल्क में माशी तरक्की की रफ्तार को तेज करने नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि डॉलर नीचे की जानिब गामजन है और गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान डॉलर की कीमत में 5 रुपये 57 पैसे की कमी हुई, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा और 100 इंडेक्स ने 47,000 की नफसियाती हद को अबूर करते हुए इस सतह को बरकरार भी रखा है। इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट बता रहे हैं अपनी तफसीलात हसन नासिर सिद्दीकी अपनी इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5 रुपये 57 पैसे की कमी हुई, जबकि गुज़िश्ता कई दिनों से डॉलर 175 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में कमी से बैनुल-अक़वामी कर्जों की अदायगियों के तवाज़ुन में बतदरीज कमी हो रही है, जबकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम आ रहा है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर की कीमत में कमी की बड़ी वजह हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियां हैं, जिनसे रुपए को इस्तेहकाम हासिल हो रहा है। जो खसारा था इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का, उसमें तकरीबन 300 मिलियन डॉलर से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। सऊदी अरब ने ऐलान किया कि 4.2 बिलियन डॉलर्स हमें वहाँ से इकनॉमिक पैकेज मिलेगा, वहाँ से पाकिस्तान के रिजर्व्स और बेहतर हो जाएंगे। और आखिरी चीज़ ये है कि जब लोगों को पता चला पाकिस्तान के अंदर कि IMF का पैकेज भी एक बहाल होने वाला है, तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। जो एक्सपोर्टर्स से जो लोग पैसे डॉलर रख के बैठे हुए थे, उन्होंने अपने डॉलर्स छोड़ के रुपए में कन्वर्ट करवा दिए। दूसरी जानिब गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान बरकरार रहा और 100 इंडेक्स ने 47,000 की नफसियाती हद को अबूर करते हुए इस सतह को बरकरार रखा, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स तक का इजाफा भी देखा गया। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफे के बावजूद हुकूमत का दीगर ममालिक के मुकाबले में पेट्रोल की कीमत में कम से कम इजाफे को तरजीह देने और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी से तिजारती हजम में इजाफा इस बात की भरपूर अक्कासी कर रहा है कि सरमायाकारों का एतमाद तेजी से बढ़ रहा है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आपको आगाह करेंगे, नई बलोचिस्तान काबीना कल हलफ उठा रही है। गवर्नर सैयद ज़हूर आगा अरकान से हलफ लेंगे। काबीना में मुमकिन तौर पर किस जमात की कितनी नुमाइंदगी होगी, ये आपको बताएंगे कोयटा से वक़ार अहमद। नई बलूचिस्तान काबीना की हलफ बर्दारी इतवार दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस कोयटा में हो रही है। बलूचिस्तान कैबिनेट की वोट टेकने के बाद बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। अब देखना यह है कि नई क़यादत -1 और इन हाउस तब्दीली के बाद बलूचिस्तान में उन टारगेट्स को किस तरह पूरा करती है जिनके लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट के सेटअप में बड़ी तब्दीली लाई गई। बलूचिस्तान में कल हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। सीनियर पार्लियामेंटेरियन सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के मुताबिक 18वीं तरमीम की रूह से काबीना में 14 वज़रा शामिल होंगे। ट्रेजरी बेंच के अहम रुकन की हैसियत से सरदार अब्दुल रहमान खेतरान का दावा है कि कैबिनेट साजी में इत्तेहादी जमातों के साथ अपोजिशन बेंचेस से भी मुशावरत की गई। अदम एतमाद की तहरीक पेश करना, उसके बाद असम्बली से उसको मंजूर कराना, उसके बाद स्पीकर का इस्तीफ़ा, उसके बाद चीफ मिनिस्टर का इंतखाब, उसके बाद फिर स्पीकर का इंतखाब, और ये मरला जो गवर्नमेंट साजी का है जिसमें कैबिनेट बनती है, एतवार को अपने ओहदों का हल्फ लेंगे। मुमकिन तौर पर ईवान की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी BAP को सबसे ज्यादा, जबकि अहम इत्तेहादी तहरीक इंसाफ के साथ अवामी नेशनल पार्टी, PNP अवामी और HDP को भी वजारतें मिलने का इम्कान है। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। जी नाज़रीन, 8 नवंबर को आज़रबाईजान के इलाके काराबाख को आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद कराए 1 साल हो जाएगा। आज़रबाईजान ने गुज़श्ता बरस 30 साल बाद आर्मीनिया के ज़ेर कब्जा इलाकों को आज़ाद कराया था। पाकिस्तान ने आर्मीनिया की जहरियत के खिलाफ आज़रबाईजान की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं काराबाख के इलाके शोशा में मौजूद PTV न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान भट्टी से। जी ज़ीशान, बताइएगा क्या अहमियत है इस इलाके की और आज़रबाईजान ने ये इलाका कैसे वापस लिया आर्मीनिया से?
गुज़िश्ता 30 बरस से आर्मीनिया के ज़ेर कब्ज़ा था। नगोर्नो कराबाख का इलाका कहलाता था, जो कि अब कराबाख का इलाका कहलाता है, और अज़रबैजान ने बिल आखिर 30 साल बाद ये तमाम तर इलाका जो है आर्मीनिया से आज़ाद करवा लिया है। ये वो इलाका जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, अगर आप देख सकते हैं मेरे कब में, यहाँ से जो आज़री फोर्सेस थी, उन्होंने उनके जो अफवाज के लोग थे वो यहाँ से इन पहाड़ों का सिलसिला जो है अबूर करते हुए यहाँ पे ऊपर आए। आर्मीनिया की जो फोर्सेस थी उनके साथ उन्होंने मुकाबला किया। न सिर्फ शुशा बल्कि अगर इसके अलावा दीगर जो इलाके हैं, गांजा इलाका है, फजूली इलाका है, वो भी शामिल हैं जो आज़ाद करवाए गए हैं। और तरक्याती काम जो है डेवलपमेंट के वो तेज़ी से यहाँ पे जारी हैं। एयरपोर्ट जो है 8 माह में फजूली में कायम किया गया है, जबकि शाहराहों के हवाले से अगर बात करें तो 8 माह के अंदर अंदर 100 किलोमीटर के करीब जो है वो शाहराह भी कंप्लीट की गई है। तो यहाँ पे इस वक्त तैयारियां जारी हैं, क्योंकि 1 बरस मुकम्मल होने लगा है इनकी फतह का दिन मनाने के लिए। तो यहाँ पे तमाम इलाका जो है उसको तैयार किया जा रहा है। यहाँ के जो अज़रबैजान के सदर हैं वो भी इस इलाके का दौरा करेंगे और डेवलपमेंट के काम जो है वो तेजी से जारी हैं। इस दौरान जो आर्मीनिया की गाड़ियां थी, जो टैंक थे, जो फोर्सेस की गाड़ियां थी, वो कब्जे में ली गई थी, वो भी अज़रबैजान ने अपने ज़ेरे कब्जा ले लिया और उनको भी बाकू में रखा गया ताकि आवाम देख सके कि वो उनको कैसे कब्जे में लिए गए। और इस वक्त ये तमाम जो ज़ेरे कब्जा आर्मीनिया का इलाका था वो अज़रबैजान ने आज़ाद करा लिया है। निशान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े बताएं कि मुल्तान में नश्तर अस्पताल के कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर में जदीद तरीन मशीनरी नस्ब कर दी गई है। सरतान के मरीजों को आइंदा चंद माह में इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब होंगी। रिपोर्ट कराएं मुल्तान से फरहान मिर्जा। कैंसर जैसे मूजी मर्ज के इलाज के लिए जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मरीजों को लाहौर या कराची तक जाना पड़ता था। मौजूदा हुकूमत ने इस तकलीफ के अजाले, बीमारी के तदारुक और तशखीस और इलाज की मुकामी सतह पर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए निश्तर कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करने का बीड़ा अपने सर लिया। 2008 से तहतुल का शिकार इस मंसूबे का तामीराती काम मुकम्मल करने के बाद इसमें लीनियर एक्सीलरेटर, सिम्युलेटर्स और दीगर जरूरी जदीद तरीन मशीनरी नस्ब कर दी गई है। ट्रीटमेंट सेंटर को मुकम्मल तौर पर फहाल बनाने में मजीद 3 माह का अरसा दरकार होगा। जब ये पूरा बिल्डिंग बन जाएगी 5 फ्लोर, तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी शुरू हो जाएगी और फिर कोई ऐसा कैंसर नहीं होगा जिसका कि यहाँ पे हम इलाज ना कर पाएँ। हमने इस इदारे में रेडिएशन के कभी कोई चार्जेस नहीं किए और इंशाल्लाह ताला हम आगे भी यही कोशिश करेंगे कि गरीब मरीजों को टोटल फ्री रेडिएशन करें। शौकत खानम अस्पताल जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट निश्तर कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर के क़याम से जनूबी पंजाब समेत अंदरूनी सिंध और बलोचिस्तान के लाखों मरीजों को लाहौर या कराची जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंसूबे के फेज 2 के तहत इमारत को तोसी दी जाएगी और मजीद जदीद मशीनरी नस्ब की जाएगी। निश्तर कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर में जदीद मशीनरी की मदद से कैंसर की बरवक्त तशखीस की जा सकेगी, जबकि इस मेगा प्रोजेक्ट की तामीर और मशीनरी की तनसीब पर 65 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए जा चुके हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। इस्लामाबाद में कोरिया पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस फोरम में इजहार ख्याल करते हुए जमहूरिया कोरिया के सफीर सुसांग पायो ने कहा कि कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान हाइड्रो पावर के शोबे में ताउन जारी और हालिया कुछ अरसे में दोनों मुल्कों के दरमियान मोटर व्हीकल्स और मोबाइल फोन्स के शोबों में ताउन में इजाफा हुआ है। कोरियन सफीर ने बताया कि उनका मुल्क पाकिस्तान को बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए इक्तिसादी तरक्याती ताउन फंड भी फराहम कर रहा है। उन्होंने कोरियन ताजरों को सहूलियात की फराहमी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर सयाहत राजा नासिर अली खान ने कहा कि सयाहत के फ़रोग के लिए गिलगित बल्तिस्तान में कोरियन कंपनीज के लिए सरमायाकारी के अच्छे मौके मौजूद हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया इस वक्त माहौलियाती आलूदगी के मसाइल से दो चार है। ये मसाइल किसी और के नहीं बल्कि इंसान के अपने पैदा करता है। जी बिल्कुल, आलूदा माहौल के असरात और उसके तदारुक के हवाले से देखेंगे इकरा ताहिर की ये रिपोर्ट। कुदरती माहौल नबातात और हैवानात की अफजाइश नस्ल के लिए अहम तरीन जुज़ है। साफ़ सुथरा माहौल ही तमाम मनाजिर को दिलफरेब बनाता है। आज कुर्राए अर्ज़ को माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ अनदेखे ख़तरात का सामना है। माजी में इस बात पर कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दी गई, जिसके नताइज माहौलियाती आलूदगी की सूरत में सामने आए। जगह जगह नज़र आता कूड़ा करकट न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करता है बल्कि नबातात पर भी अपने मनफी असरात मुरतब करता नज़र आता है। हम अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखने के लिए अपनी गली मोहल्ले में कूड़ा करकट के जगह जगह ना फेंकने चाहिए और जहाँ भी दिखना चाहिए उसे साफ सुथरा करना चाहिए। प्लास्टिक बैग सहूलत के बजाय जहमत बन गए। गंदे नालों के आम बहाव ने ज़ेरे ज़मीन पानी को भी काबिल इस्तेमाल नहीं छोड़ा।
इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने कई अहम इक़दामात उठाए। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी, कराची के गंदे नालों की सफाई और ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान जैसी कई मुहिम चलाई, जिनकी बदौलत कुदरती हुस्न की बहाली मुतवक्के है। साफ और शफाफ माहौल फराहम करना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा भी अखलाकी फर्ज है। इकरा ताहिर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों की सकाफतें एक ही छत तले यकजा हो गई। मेले में मसूर कुल मौसीकी के साथ इलाकाई रक्स पेश किए गए। भंगड़े, खटक और सिंधी डांस ने तो शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। मजीद तफसील क्या है, ये बता रही है रावलपिंडी से मरियम मलिक। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में सजा सकाफती मेला मुख्तलिफ तहजीबों का नुमाइंदा बन गया। रंगारंग मलबूसा जेब तन किए फनकारों ने न सिर्फ एक कौम होने का खूबसूरत मुजाहरा किया बल्कि सकाफती रवायात से भी रोशनास करवाया। मेले के दौरान फनकारों ने पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकाई रक्स पेश किए। आज़ाद कश्मीर के रवायती रक्स और पंजाबी भंगड़े ने सबकी तवज्जो हासिल की। तकरीब में रंग, रूप और मौसीकी सब कुछ था। हाज़रीन खुद को झूमने से ना रोक सके। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने फ्रेंड्स के साथ आए, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। डिफरेंट कल्चर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मुझे सबसे ज़्यादा कश्मीर की अच्छी लगी। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए पंजाब में। अब हम लोग पंजाब की साइड से हैं तो हम लोग के जो पंजाब के लोग फोक हुई है वो बहुत अच्छी लगी है। लोग मतलब इस तरह आते हैं, उनको अच्छा लगता है ऐसे इवेंट्स देख के। मतलब एक कल्चर प्रमोट होता है। ढोल बहुत अच्छा था, ढोल की बीट भी बहुत अच्छी थी। आज मेरी छुट्टी थी और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई और मैंने बहुत एंजॉय किया। खेलों के सजे मैदान और सकाफती मेले अक़वाम की ज़हनी सेहत के अकास होते हैं। चारों सूबों के सकाफती इम्तिजाज से मुज़य्यन इस मेले में हर सूबे के निराले रंगों को खूबसूरती से उजागर किया गया है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, रावलपिंडी। नाज़रीन, इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ हैवानात मकामी नस्लों के ज़ेर एहतमाम जंग में रेड गोल्ड क्लब में शामिल होने वाले साहिवाल कैटल्स के मालिकान को इनामात देने की तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए लाइव स्टॉक नवाब फैसल हयात खान जबवाना ने कैटल्स के मालिकान में ट्रॉफीज और नकद इनामात तकसीम किए। रेड गोल्ड क्लब का बुनियादी मकसद मुल्क में मयारी डेयरी मसनूआत की पैदावार में इजाफा करना है। इसके साथ साथ दूध देने वाली कैटल्स की मकामी नस्लों में जीनियाती बेहतरी भी तहकीकाती इदारे का बुनियादी मकसद है, जिसके हुसूल के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को अच्छे सांडों की मुनासिब तादाद में फराहमी भी मुमकिन बनाई गई है। इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ हैवानात मकामी नस्लों ने जीनियाती तज्ज़िये में महारत के हुसूल के लिए तरबियती वर्कशॉप का भी एहतमाम किया। वर्कशॉप के तहत महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के 5 मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट्स के अमले और अफसरान को तरबियत फराहम की गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात कहता है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहा।